Hey guys, welcome to my channel. So we were discussing about Neolithic age and Neolithic age की हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर कैसे करते थे न्योलिथिक लोग और उनकी एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन कैसे करते थे, हाउ देयर क्लोथिंग एंड हाउसिंग यूज टू बी, उनके क्लोथ हाउसिंग कैसे होती थी वो डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पोट्री एंड बरियल प्रोसेस ऑफ न्योलिथिक पीपल। वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर वही कंसेप्ट को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश। In 4000 BC, the Neolithic men invented potter's wheel, that is a wheel which is believed a very important invention of technological advancement of men. Due to this invention, the pottery that made from potter's wheel. So earlier the pottery was used to be made from hand, but now the pottery was made by the potter's wheel, and it became possible. So pottery from potter's became wheel. Pottery from potter's wheel became possible. Earlier it used to be done by hand. So with the prevalence of wheel, the process of painting on the surface of pottery also became popular. This is how they used to do the pottery. The main concept you have to learn about this is that they invented potter's wheel. So the pottery was done by using the potter's wheel, and the painting also became prevalent during this time. So let's talk about the burial process of the Neolithic people. So in this we are going to discuss about how the North Indian people used to bury their dead and how the South Indian people used to bury their dead. The things how they used to do were kind of different. So first of all, in North India there were two types of burial processes. One was complete burial process and other was partial burial process. In complete burial process, a circular pit was digged first, and after that in that pit the dead person had lied used to be laid down flat on the back. In partial burial process, the selected bones of the dead person was buried in the grave that was digged in the ground. So not the whole body, but only the selected bones were buried. The custom of burial of the pet animal dog with their master was found at Burzahom and Gufkaral of Kashmir. I have already told you about this, that the dog became their domestic animal. Many animals were tamed during that time, but they used to bury dog with the dead person. So the evidence of burial of the pet animal goat with their master was found from Mehergarh. So burial of the dog, the evidences of burial of dog was found from Burzahom and Gufkaral of Kashmir. And the burial of goat, the evidences of this is found from the site of Mehergarh of Balochistan, Pakistan. Probably these animals, dogs and goats, etc., were placed to eat by the dead person in the next world. Now let's talk about the South Indian burial process. In South India, there were two types of burial processes. One was complete, that is extensive, and second was partial burial process. Under the complete, that is extensive burial process, the corpse of old male, female had buried in the graves that were digged in the ground. In the grave, pottery, implements, etc. were placed as grave goods with the corpse. Corpses of small babies, the babies who used to die earlier, means the corpses of small babies were completely buried after placing them into pot, which is known as pot burial. Under the partial burial process, selected bones of the dead person were buried in the graves. So only difference is in North India they used to bury the dogs and the animals with them, but in South India the most of them the burial of implements and pottery was very prevalent more than the burial of animals with them. So this is about the burial process and the pottery of the Neolithic age. अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जो नियोलिथिक पीपल थी तो उन्होंने 4000 BC के अराउंड उन्होंने जो पोटर व्हील था, मतलब जो वो पहिया होता है जिस पे पोट्री की जाती है, ठीक है, उसकी इन्वेंशन कर ली थी। तो इसलिए अब हैंडमेड पोट्री की बजाय वो पोटर व्हील के थ्रू के द्वारा पोट्री करने लगी, मतलब आसानी आ गई उनके काम में। इसके अलावा उनकी जो पोट्री के प्रोसेस में हमें किस चीज़ के और एविडेंस मिले हैं, हमें मिले हैं पेंटिंग के एविडेंस। तो जैसे ही व्हील प्रेवलेंट हुआ उस टाइम में, तो अब पेंटिंग भी शुरू होगी ऑन द पोट्री, ऑन द सरफेस ऑफ पोट्री। जो भी पोट्री बनाते थे उस पर पेंटिंग भी होने लग गई थी, ठीक है। तो पोटर्स व्हील वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। तो पोटर व्हील जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी उस टाइम की न्योलिथिक पीपल की, जिसने उनकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल दी थी, उनकी पोट्री काफ़ी हद तक बदल दी थी।
अब बात करते हैं बरियल प्रोसेस की। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा डिफरेंस है बरियल प्रोसेस में। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में वो क्या करते थे, दो तरह के बरियल प्रोसेस होते हैं। बरियल प्रोसेस मतलब जो डेड बॉडीज़ थी उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करते थे। तो एक था कंप्लीट और दूसरा था पार्शियल बरियल प्रोसेस। कंप्लीट बरियल प्रोसेस में वो क्या करते थे, सर्कुलर पिट डिग कर लेते थे और उसमें वो डेड बॉडी को ले कर देते थे ऑन बैक, मतलब फ्लैट ले कर देते थे अपनी पीठ पर, ठीक है। और उसके बाद जो भी एनिमल्स होते थे, ठीक है, उनकी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मतलब डॉग्स को वो बरी कर देते थे या फिर गोट्स को वो बरी कर देते थे। डॉग्स के बरियल के जो वो हैं सबूत हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, बुरज़ा होम में मिलते हैं और गुफकरल कश्मीर में जो उसमें मिलते हैं। और उसके अलावा वो गोट्स को भी बरी कर देते थे, तो उसके सबूत कहाँ पे मिलते हैं हमें, मेहरगढ़ में मिलते हैं जो पाकिस्तान में है, ठीक है। जो पार्शियल बरियल प्रोसेस है उसमें भी वो बरी तो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो सिलेक्टेड बोन्स को बरी कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन को या कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को नहीं बरी कर रहे, वो सिलेक्टेड बोन्स को बरी कर रहे हैं, इसीलिए उसको पार्शियल बरियल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर से वही ग्राउंड में डिग किया जाता था पोट और पिट, और उसमें वो बरी कर देते थे। और उसमें भी ऐसे ही डॉग्स और मेनली वो चीज़ ये है कि उसमें क्या कर रहे हैं बरियल प्रोसेस में नॉर्थ इंडिया में, वो एनिमल्स को जो भी उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनको डेड बॉडी के साथ बरी कर रहे हैं, ठीक है। डॉग्स को जिसके सबूत मिले हैं हमें बुरज़ा होम में, गफकरल में, और गोट्स बरी की हुई है इसके सबूत हमें मिले हैं कहाँ पे, जो एक साइट है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, उस वहाँ पे मिले हैं हमें। अब बात करें साउथ इंडिया के बरियल प्रोसेस में, वहाँ पे भी दो तरह के बरियल प्रोसेस प्रेवलेंट थे। एक था कंप्लीट जिसे एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस कहते हैं और दूसरा पार्शियल बरियल प्रोसेस। कंप्लीट या फिर एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस में वो क्या करते थे, जो भी कॉर्प्सेस होते थे मेल्स और फीमेल्स के उनको बरी कर देते थे ग्रेव में, ठीक है, जो कि ग्राउंड में ही डिग की जाती थी। और ग्रेव में वो पोट्री और इम्प्लीमेंट्स जो होते थे ह्यूमंस के उसको भी साथ बरी करते थे। और जो स्मॉल बेबीज़ की कॉर्प्सेस होती थी उसको तो वो कंप्लीट बरी करते थे आफ्टर उसको जो प्लेस जो भी पोर्ट होता था ना, पोर्ट बरियल होता था, ठीक है। तो जो भी छोटे बेबीज़ की कॉर्प्सेस होते थे वो उसके क्या करते थे, पोर्ट में डाल के उसको फिर बरी कर देते थे, तो इसीलिए इसको पोर्ट बरियल कहते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्मॉल बेबीज़ होते थे उसको पोर्ट में डाल के फिर बरी करते थे, ठीक है। पार्शियल बरियल प्रोसेस होता था एक साउथ इंडिया में, वहाँ पे क्या करते थे, वो सेलेक्टेड बोन्स जो होती थी डेड बॉडीज डेड पर्सन की उसको बरी करते थे। तो ये थी बात अबाउट द बरियल प्रोसेस एंड द पोट्री ऑफ द न्यूलिथिक पीपल। थैंक यू सो मच।